logicals. Today, we will be dealing with a new topic. Rather, we should say that we will be dealing with a new subject, that is family law. In family law, today we will be discussing about the concepts and institution of marriage. Before going further, let me explain you how we will be going with further lectures. So, generally what happens is, these universities like IIT, DU, what happens is, one question is being given. This question is of around 12.5 marks. Okay, so 12.5 marks, generally we are expected to write around 6 to 7 pages at a minimum level. Okay, so what I am planning is कि मैं एक क्वेश्चन वाइज फॉर्मेट में आपके आंसर्स प्रेजेंट करूं, जिससे कि व्हाट विल हैपन इज कि यू विल गेट बेनिफिट ऑफ आंसरिंग दोज क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको अभी नोट वाइज पॉइंट वाइज पहले से प्रोवाइडेड है. तो व्हाट विल हैपन इज कि आपको एग्जाम में एक तो हेल्प मिलेगी. ठीक है, यू डोंट हैव टू वर्क ऑन योर नोट्स बिकॉज यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद दीज नोट्स. ठीक है. Secondly, what happens is कि जब आप नोट से पढ़ते, जब आप पॉइंट वाइज पढ़ते हैं ना, योर इमेजिनेशन, योर विजन गेट्स क्लियर कि आपको क्या लिखना है उस आंसर में. ठीक है. Secondly, what happens is कि जब मैंने ये वाले नोट्स बनाए हैं ना, I have not visited single website, I have visited multiple websites. तो उसमें क्या है, मैंने सारे कंबसम करके एक जगह पे ले आया हूँ. ठीक है. फर्दर यू फील कि आपको और इन्फॉर्मेशन लिखनी है, then what you can do is get a printout of these notes and then write additional things. In after every page there is some space given. You can write the additional points in this space. Okay, so let us start with the lecture. So firstly, we will be dealing with the question, explain the concept of marriage in the context to Hindu law. In this law, what I have planned is I will be dealing with 4 topics. Firstly, the history of marriage. Okay, don't judge me on my writing, I am very bad in writing. So first we will be dealing with history of the marriage. Okay. Secondly, we will be dealing about the introduction part, what we have to write in introduction part of the marriage. Okay. Thirdly, we will be dealing about the application of marriage, and fourthly, we will be dealing about whether the marriage is a contract or a sacrament. Whether the concept of marriage is a contract or not a contract, it is a sacrament. We have to discuss that. Okay, so let us start with the lecture. Okay. Okay, now first of all, what I will be doing is I will provide these notes. These notes will be provided on a Telegram channel. You can find this in the YouTube description box. Okay, this video's description box, you can find the Telegram link and you can join that Telegram group, and you can easily find these notes. Okay, so what I will be doing is I will be explaining you all the concepts in the digital copy, and then after this you have to go through each and every point written in these notes, and the concept will become crystal clear to you. Further, you have any doubt, you can mention it in the comment box. Okay, so starting with the topic. Firstly, the history. As I said, history. Okay, right. So the history. So what happened was there was no concept of marriage. ठीक है, तो एक आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि तो मैरिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो हाउ कम अभी मैरिज का कॉन्सेप्ट आ गया, या फिर अभी एक साथ कैसे आ गया. ठीक है, तो वी विल बी डीलिंग इन हिस्ट्री, वी विल बी डीलिंग अबाउट द एवोल्यूशन, कि एवोल्यूशन कैसे हुआ, मैरिज की टर्म का एवोल्यूशन हुआ कैसे. ठीक है, तो नंबर फर्स्ट, सबसे पहले ना किसी भी चीज का अगर आपको एवोल्यूशन जानना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइस द प्रॉब्लम, कि ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि आपको ये वाली चीज आई, ये जो चीज है जैसी टर्म मैरिज, कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज है, वो क्यों आया, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई जिससे कि मैरिज के कॉन्सेप्ट को आने की जरूरत पड़ी. ठीक है, तो लेट मी लिस्ट आउट द प्रॉब्लम्स कि मैरिज में ऐसे बिना मैरिज की टर्म के ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी जिससे कि मैरिज की कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ. ठीक है, द प्रॉब्लम्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स वर कि सपोजिटली लेट अस एज्यूम कि ये एक ट्राइब है. ओके, ठीक है, ये ट्राइब है जिसके अंदर 1 2 3 4 5. लेट अस टेक एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन. ठीक है, वैसे एक ट्राइब में बहुत सारे लोग होते हैं. लेट अस टेक एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि इस वाली ट्राइब में 5 लोग ही हैं. ओके, इन दिस ट्राइब ये एक फीमेल है, ये एक फीमेल है, ये एक मेल है, ये एक मेल है एंड ये एक मेल है. ठीक है, ओके. What happens is this female gets pregnant and she gave birth to a baby. He is also
this baby is a daughter of this mother. ठीक है? So now for this baby, this daughter, we know who is the mother. She is the mother. She is the mother. But when we talk about the father, who is the father? Who is the father out of three? Out of these three, who is the father? So he also says, I am the father. He says, I am the father. He says, I am the father. So all the three are saying that they are the father. Okay. So we went to this mother. Okay. So we went to her. Do you know who is the actual father of this daughter? Who is the father of your baby? So she said, I have a sexual intercourse with this man, and this man. Okay. So what she says is, I have sexual intercourse with this person, and this person. I am unable to find who is the actual father of my baby. Okay. The first problem, what is the first problem? We know who is the mother, but we don't know who is the father. ठीक है. Second question. Second problem was कि यार क्या हुआ कि ये एक पर्सन था supposedly as a, ये तो यार हमने केव एज की बात कर ली, केव एज की बात कर ली. अब क्या हुआ, सोसाइटी स्टार्ट्स डेवलपिंग. ठीक है, सोसाइटी डेवलप हो गई, ये स्टेज 2 है. ठीक है, अब सिविलाइजेशन आ गई. ठीक है, अब होने लग गया. ये एक पर्सन है. ठीक है, ये जो पर्सन है इसने बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा, और ही गॉट ओनरशिप ऑफ अ हाउस. ठीक है, ही ओन्ड अ हाउस, ही हैज अ कार. ठीक है, he has a car, he has a home, he has jewels. ठीक है, he has jewels, he has car, he has house. ठीक है, इसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि यार अगर मैं मर गया, if I died, what will happen to this my property which I have owned by my own hard work? अब मेरा उसका क्या होगा? सेकंड इसका जो थॉट आया वो आया कि यार I love this person. ये उसकी गर्लफ्रेंड है सपोजेटली. I love this person. ठीक है, तो अब इस वाले पर्सन, they both had sexual intercourse and as a result they had a baby. ठीक है, सब बेबी. So he wanted कि अगर मैं मर जाऊं ना तब भी यार इसका डेवलपमेंट हो. If any unforeseen incidents hit me, लेकिन इसकी डेवलपमेंट नहीं रुकनी चाहिए. They both get all the facilities. ठीक है, if I am alive or if I am dead. ठीक है, so ये एक सेकंड प्रॉब्लम थी. प्रॉब्लम 2 क्या है हमारी? प्रॉब्लम 2 is कि यार what will happen to legacy? क्यों? What will happen to his legacy? ठीक है, तो हमारे पास 2 प्रॉब्लम आ गई. अब एक महान इंसान ने ये कहा कि भाई मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन दे रहा हूं, तब बताना कि तुम्हारी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या नहीं हुई. अगर हो गई तो फिर अब हो गया, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है. अगर नहीं हुई तो फिर बताना कि अगर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं. ठीक है, उसने कहा ये एक पर्सन है, ये एक मेल है, ये एक पर्सन है, ये फीमेल है. ठीक है, ये और ये एक दूसरे से प्यार करते हैं. ठीक है, दे लव ईच अदर. ठीक है, दे लव ईच अदर. ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज, इसने कहा कि अगर ये दोनों ही प्यार करते हैं ना तो दे शुड बी टाइड इन अ यूनियन, एक्सक्लूसिव यूनियन. ये और ये एक एक्सक्लूसिव यूनियन में आ जाएंगे जिसे हम मैरिज बोल सकते हैं. ठीक है, अब उससे क्या होगा एक्सक्लूसिव यूनियन से आने में? अगर इन दोनों का बेबी हुआ, अगर इन दोनों का बेबी हुआ तो कोई डाउट रह जाएगा कि सपोजिटली ये मेल था ना तो ये इसका फादर है और ये इसकी मदर है. विल देयर बी एनी डाउट? ठीक है, उसने कहा नहीं यार ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है यार, कोई डाउट नहीं रह जाएगा. उसने कहा चल ठीक है. अब सेकंड प्रॉब्लम पे आओ. जब ये एक्सक्लूसिव यूनियन आ गई ना तो हम जो है अपने एक्ट्स और लेजिस्लेशंस के थ्रू व्हाट वी कैन डू इज कि हम सक्सेशन एक्ट बना देते हैं, जिससे कि जो तेरी प्रॉपर्टी है ना, जो तेरी प्रॉपर्टी है चाहे वो एंसेस्ट्रल है, अगर तेरे पोर्शन में, अगर तेरा शेयर है उस प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो तुझे मिली है, सेकेंडली जो तूने कमाई है वो तेरे बेबी को मिल जाएगी. इसकी हम एज लेजिस्लेशन गारंटी दे सकते हैं.
तो क्या तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? उसने कहा यार हाँ सही है, सही सही बोल दिया भाई तूने, बिल्कुल प्रॉब्लम ये वाली परसिस्ट नहीं करेगी, अब दोनों सही हो जाएंगी। तो उसने कहा बस सही है। फिर एक तो इसलिए द टर्म मैरिज केम in which it states that it is an exclusive union in which both they are couples, ठीक है, they both love each other, they have subordinate rights and obligations with each other, and furthermore वो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन we talked about कि हिस्ट्री कैसे आई, तो we understood कि ये हिस्ट्री ऑफ मैरिज क्या थी, कैसे थी। फर्दर आप नोट्स में पढ़ेंगे तो यू विल गेट क्लिस्टर क्लियर आइडिया कि वो क्या है, ठीक है। सेकेंडली ये हमारी हिस्ट्री कवर हो गई, लेटेस्ट मतलब एक ग्लिम्स ले लेते हैं नोट्स की, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ मैरिज, ह्यूमन सोसाइटी वाज अ नोमैडिक सोसाइटी। नोमैडिक सोसाइटी वो सोसाइटी होती है, जस्ट अ मिनट, नोमैडिक सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो कि एक स्टैटिक एक जगह पे नहीं रहती। जैसे अब हमारा घर है, ठीक है, हम घर में रहते हैं, हमें कुछ भी सामान चाहिए होता है हम मार्केट जाते हैं, एक डिफाइंड प्लेस है सब चीज की। लेकिन नोमैडिक सोसाइटी में व्हाट हैपेंस है, जैसे ये पूरा ना, ये सपोजिटली ये पूरा एरिया ले लो, ठीक है, और ये दूसरा एरिया है, यहाँ पे ना एक ट्राइब बस जाती थी, ट्राइब यूज्ड टू लिव हियर। अब यहाँ पे पेड़ भी हैं, ठीक है, पेड़ हैं, यहाँ पे जो है यार बहुत सारे एनिमल्स घूमते हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे ट्राइब ने केव या कुछ ऐसा बना लिया। अब उसने कहा देखो ट्रीज में फ्रूट्स वगैरह जैसी जो भी हैं, तो वहां से हम फूड ले सकते हैं, एनिमल्स को मार के फूड ले सकते हैं। कोई रिवर होगी आसपास, जैसी सपोजिटली ये रिवर है, रिवर से हम वाटर ले सकते हैं। तो ऐसे कर कर आके तो ये यहाँ पे रह लेते हैं। अब उन्हें लगता है कि यार यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक्सटेंट होते जा रहे हैं, मतलब जैसे यहाँ पे अब ज्यादा फूड नहीं मिल पा रहा है, या एनिमल्स जो है यहाँ पे ज्यादा नहीं घूम रहे हैं, ये सब, तो दे यूज टू शिफ्ट, they don't used to live at the same place, so they used to migrate from one place to another, so this term is known as nomadic. So at that time was nomadic societies, ठीक है, जो कि ये माइग्रेशन प्रोसेस करती थी, they were known as nomadic societies. Okay, talking further, before civilization there was possibly a herd instinct type of marital relationship. Okay, but with the time the nomadic human society starts evolving into agriculture sector. For now only the maternity was possible to know, but paternity left unregulated. ठीक है, आ गई एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आई कि यार मदर तो पता चल गई, फादर का क्या, फादर कैसे पता लगेगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ गई। As the society updates into a newer version of itself and human starts developing, the need arises to know human belonging and ownership of maternal material belongings as a natural result of human and the males should know about their children. This seems to be impossible if the contiguity goes on as a rule. ठीक है, तो what this says is कि अब उन्हें ownership अपनी जो ह्यूमन सब ह्यूमन बिलोंगिंग्स एंड ओनरशिप ऑफ मटेरियल बिलोंगिंग्स, अब उस पर ज्यादा कॉशियस हो गए कि यार हाँ यार बिल्कुल सही बात है, ये तो हमारा है, हमारे हार्ड वर्क से है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें अपने डेवलपमेंट और अपने जो फर्दर जो हमारी वो है आगे जनरेशन है उनके डेवलपमेंट में लगाना चाहिए। तो दे यूज्ड टू गेट कॉशियस अबाउट दीज थिंग्स। It is possible to define the paternity if sex relationship can be converted into an exclusion of union of men and women. As I said, उन्होंने कहा कि एक exclusion relationship बना देते हैं जिसमें कि एक मेल होगा, एक फीमेल होगी, और केवल जो यूनियन होगा उसको नाम हम दे देते हैं मैरिज। ओके, therefore we can't say that the man's search to know the paternity, we can say that the man's search to know the paternity of children becomes a seed of the institution of marriage. तो ठीक है, seed of the institution of marriage क्या बना? The man's search to know the paternity. Okay, perfect, right. अब नेक्स्ट आते हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे। ये हम पूरा समझ चुके हैं, ठीक है। लेट अस कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में अब हेडिंग्स कैसे बनाए, मतलब पॉइंट्स कैसे बनाए, पॉइंट्स को एक्सटेंड कैसे करें। तो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले हम मैरिज को डिस्कस करेंगे, ठीक है, मैरिज। अब मैरिज में सबसे पहले उसके अदर वर्ड्स क्या है, अदर वर्ड्स इन द सेंस कि मैरिज को पता क्या बोलते हैं, वेडलॉक भी बोलते हैं, वी नो दैट, वेडलॉक, मैट्रिमनी, ठीक है, वी नो दैट। तो इसका एक पॉइंट बन गया। सेकेंडली हमें पता है कि ये सोशली एंड रिचुअली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। अब सोशली एंड रिचुअली रिकॉग्नाइज्ड है, इसका क्या मीनिंग हुआ? सोशली है, ठीक है, जब भी एक पर्सन, दो पर्सन मतलब कि एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, इन दोनों का एक्सक्लूसिव यूनियन जो है ये टाई अप होते हैं, सोलेमनाइज होती है इन दोनों की मैरिज, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज हम जब इसकी सेरेमनी करते हैं ना मैरिज की, तो वी यूज टू कॉल रिलेटिव्स, ठीक है, वही वाले रिलेटिव्स जो रिजल्ट पे फोन करते हैं, ओके। तो उन वाले रिलेटिव्स को बुलाते हैं कि यार प्लीज शो योर प्रेजेंस, और
प्लीज शो योर प्रेजेंस, और हम जो है हमारे या तो सन या हमारी डॉटर की मैरिज हो रही है एंड यू हैव टू कम, ठीक है। तो व्हाट वी आर डिपिक्टिंग इज टू द जनरल वर्ल्ड कि ये दोनों पहले सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं एंड दे आर गोइंग टू स्टेप इन टू अ एक्सक्लूसिव यूनियन व्हिच वी नेम एज मैरिज, ठीक है। तो ये सोशली रिकॉग्नाइज्ड हो गए, फाइन, ये सोशली रिकॉग्नाइज्ड हो गए, ठीक है। सेकेंडली, रिचुअली रिकॉग्नाइज्ड। अब रिचुअली रिकॉग्नाइज्ड को पढ़ने के लिए सेक्शन 7 में पहुंच जाते हैं, देर आके सेक्शन 7। सेक्शन 7, हाँ, सबसे पहले सेक्शन 7 कहता क्या है? सेक्शन 7 कहते हैं सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज, ठीक है। सेक्शन 7 में पहुंचो पहुंचो, ठीक है। वी गॉट इनटू सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज कहता है, हियर इट सेज कि हाँ, हिंदू मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी देयर टू। तो इसमें कह रहे हैं कि जो हिंदू मैरिज है वो सोलेमनाइज हो जाएगी इन अकॉर्डेंस विद कस्टमरी राइट्स, कोई कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज जो भी होंगी वो परफॉर्म करो और वो सोलेमनाइज हो जाएगी उनकी दोनों की मैरिज, ठीक है। सेकेंडली, वो ये कहता है कि वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड, अब ये वाली जो राइट्स एंड सेरेमनीज है वो इंक्लूड करती हैं सबका पड़ी, that is the taking saptapadi, that is the taking of 7 steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire. The marriage becomes complete and binding when the 7th step is taken. तो जो मूवी में देखते हैं ना कि भाई मांग में सिंदूर भर दिया and the marriage got complete, तो it is wrong, ठीक है, ठीक है, इट इज रॉन्ग। मूवी में जो दिखाते हैं वो हर बात सही नहीं होती है, ठीक है। तो 7th सेक्शन में हमें क्या बताया है कि यू हैव टू फॉलो रिचुअल्स एंड सेरेमनीज एंड दीज रिचुअल्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड एक ब्राइड और एक ग्रूम, ठीक है। they have to take jointly, they have to take steps jointly before sacred fire, ठीक है। हमने जनरली मैरिज में भी सुना होगा कि इसको जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं कि हम अग्नि देवता, व्हाट वी इन हिंदू माइथोलॉजी व्हाट वी सेज इज कि अग्नि देवता के सामने हम प्रत्यक्ष होके, मतलब अग्नि देवता को प्रत्यक्ष मान के हम जो है 7 स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है। व्हाट वी थिंक इज ये, मतलब व्हाट वी बिलीव इज ये, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब इसमें क्या हुआ, ये जो रिचुअल्स हैं, ये जब 7, जैसे इसने बोला कि ये 7 स्टेप जब हो जाएगा, व्हेन द 7th स्टेप इज टेकन, 7th स्टेप इज टेकन, तो इट बिकम्स कंप्लीट एंड बाइंडिंग, तो रिचुअली रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। कमिंग टू बैक टू द टॉपिक, रिचुअली रिकॉग्नाइज्ड हो गया ये बंदा, सोशली भी रिकॉग्नाइज्ड हो गया, ठीक है। कमिंग नेक्स्ट, अब राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कैसे होती हैं? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सबसे पहले कपल्स की आपस में ईच अदर होती हैं। सेकेंडली, कपल्स की उनकी ऑफस्प्रिंग से, उनको अच्छी एजुकेशन देना, उनको अच्छी लाइफ देना, ये सब हो गया, ठीक है। अब कपल्स की इन लॉज से, वाइफ के जो हस्बैंड है, मतलब जो हस्बैंड है वो वाइफ के पेरेंट्स से, एंड जो हस्बैंड है उसके पेरेंट्स को और वाइफ के, तो ये वाले रिलेशन आप समझ पा रहे हो? लेट मी रिपीट माई सेल्फ कि जैसी ये वाइफ है एंड ये हस्बैंड है, ठीक है, इसके सपोजिटली 2 पेरेंट्स है एंड इसके भी 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है, फादर मदर, फादर मदर। तो जो वाइफ है और ये हस्बैंड है, वाइफ के इनके साथ और हस्बैंड के इनके साथ, ठीक है। अब इन लॉज हो गए ना, हस्बैंड के इन लॉज, ये फादर इन लॉ मदर इन लॉ, और वाइफ के ये हो गए फादर इन लॉ मदर इन लॉ। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ओनली कि ये जो वाइफ है ये इनके साथ और हस्बैंड इनके साथ, तो कपल्स हैव अ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑन देम, ठीक है, कि आपको उनका ध्यान रखना है एंड हैज टू ट्रीट देम एज देयर रियल पेरेंट्स और एन नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कपल्स की जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है सोसाइटी के लिए भी तो है, जनरल सोसाइटी की है, जनरल सोसाइटी के लिए भी तो है। कैसे? आप डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करेंगे, ठीक है। अब डोमेस्टिक वायलेंस में क्या होता है, आप सोसाइटी को एक इमेज दे दो कि ये जो यूनियन है ये बहुत ही बेकार है, क्यों? क्योंकि आपकी वर्किंग नहीं है, ठीक है। तो आप क्या सेट, एक एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए जो कपल्स की राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है वो जनरल सोसाइटी के लिए भी है, ठीक है। चलो, ये मैरिज हो गया इंट्रोडक्शन में। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट हार्मोनाइजेस, ठीक है। व्हाट इट हार्मोनाइजेस, व्हाट ऑल इट हार्मोनाइजेस इज धर्म, अर्थ, okay, artha, and thirdly kama, okay, these 3 things it harmonizes, ठीक है। अब समझ तो लिया है, लेट अस डिस्कस कि इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्स ऑफ हिंदुइज्म के।
पता है गोल्स ऑफ हिंदुइज्म क्या है? गोल्स ऑफ हिंदुइज्म 4 होते हैं, ठीक है, ये तीनों तो होते ही हैं, फोर्थली बीइंग, ये तीनों तो सेम है, फोर्थली बीइंग मोक्ष, मोक्ष में वही भक्ति एंड ऑल दीज थिंग्स आती हैं, ठीक है, तो ये सारे गोल्स ऑफ हिंदुइज्म होते हैं, ठीक है। तो इट हार्मोनाइजेस धर्मा, अर्था एंड कामा। धर्मा, व्हाट इज धर्मा? मतलब एक ब्रीफ आपको ग्लिम्स दे देता हूँ टॉपिक की। धर्मा क्या होता है? धर्मा इज अपने आप में एक टॉपिक, वैसे मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। धर्मा क्या है? धर्मा इज ड्यूटी, ठीक है। ड्यूटी टू डू व्हाट? इट इज ड्यूटी that मतलब एक set standard, there is a sort of standards given by which a person should live. There are sort standards given by which a person should live, so it is the duty of that person to live by that standards, ठीक है, standards, ठीक है। अर्था, व्हाट इज अर्था? अर्था इज कि वेल्थ एंड पावर, जनरली हमारे हम देखते हैं तो वेल्थ एंड पावर आर कंसिडर्ड इविल्स, ठीक है, वेल्थ एंड पावर्स आर कंसिडर्ड इविल्स, बट इन अर्था इट इज सेड कि वेल्थ एंड पावर इज ओके if you are utilizing it in raising a family or keeping a household, ठीक है। And thirdly, karma. Karma means everyone experience love, attraction in their life, okay, so everyone experience love and attraction in their life, so it is completely okay to have these type of experiences, these type of attractions in karma. So it when we follow, when we get into a union of marriage, so we harmonizes all these three things, ठीक है, which is the ultimate goal of Hinduism, right? And thirdly, we will be talking about Kanyadan. Kanyadan. Going by notes itself, what does Kanyadan says? What is actually a Kanyadan? ठीक है, so let us understand by this. Hindu marriage refers to Kanyadan, ठीक है, it refers to Kanyadan, which means gifting a girl to a boy by the father with all the tradition and rituals or customs. Hindu marriage is an ancient tradition which is prevailing from Vedic period to modern world with different modifications that have occurred until now, ठीक है। What it says is कि ये कन्यादान जो है ना, कन्यादान is a term which means कि gifting a girl to a boy, एक girl है, supposedly it's a girl and it's a boy, ठीक है, and girl के जो father है, father, ठीक है, तो what it says is gifting a girl to a boy with all the traditions and rituals, हमने पढ़ा था अभी rites and rituals वाली चीज, ठीक है, तो that was a just a small thing, ठीक है। अभी बहुत सारे rituals, बहुत सारे customs, बहुत सारे traditions आए अपने आप में बहुत सारे, तो traditions भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो वो वाला जिस कल्चर में तुम हो, जिस ट्रेडिशन में तुम हो, उसको ध्यान में रखते हुए, सारे राइट्स एंड कस्टम्स को पूरे करते हुए, जो फादर है वो अपनी गर्ल को गिफ्ट करता है टू अ बॉय, ठीक है, दैट इज नोन एज कन्यादान, कन्यादान, ओके। सो कन्यादान इज ऑल्सो अ फीचर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज बिलीव दैट इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, और ये रिमेन इवन आफ्टर डेथ। अभी हम आगे जजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट ऑल्सो सेज कि जज मतलब कोर्ट भी ऑल्सो स्टेज ऑन द फैक्ट कि इट द मैरिज इज सच अ प्योर यूनियन कि इट मे ऑल्सो एक्सीड आफ्टर डेथ, ठीक है। Next point, the definition of marriage varies according to different countries and cultures. As I previously said, बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेडिशंस होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यार अब जैसे अगर मेरे कल्चर ले, सपोजिटली मेरे कल्चर में अगर सपोजिटली एक गर्ल है और एक बॉय है, ठीक है, हम दोनों की जो एक गर्ल है, जैसे सपोजिटली एक गर्ल है, ये बॉय है, इन दोनों की मैरिज जो है, इंस्टेड ऑफ आप खड़े होके ले रहे हो, जो चक्कर लगाओगे बिफोर सेक्रेड फायर, आप खड़े होकर कर रहे हो, मेरे यहाँ कल्चर है कि आप जो है, जो ब्राइड है उसे आप उठाओगे, बॉय उठाएगा, एंड देन ही हैज टू रिवॉल्व अराउंड देन ही हैज टू जॉइंटली टेक स्टेप्स अबाउट विद बिफोर द सेक्रेड फायर, ठीक है। अब मेरे यहाँ ये कल्चर है, लेकिन हो सकता है कि आपके यहाँ ये कल्चर नहीं हो, समझ रहे हो, तो आपके यहाँ ये कल्चर नहीं है, तो मैं तो अपने कल्चर से बाइंडेड हूँ और आप अपने कल्चर से बाइंडेड हो। आप अगर आपके कल्चर में है कि आप स्टैंड होके जो वो है सैक्रेड फायर के बिफोर स्टेप्स लोगे, तो आप स्टैंड होके लोगे। मेरे कल्चर में है कि अगर मैं ब्राइड को उठा के सेक्रेड फायर के बिफोर स्टेप्स लूंगा, तो मैं ऐसे ही करूंगा। तो इट डिपेंड्स ऑल ओवर द कल्चर, तो दे आर वाइड नंबर्स ऑफ कल्चर्स इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो जैसे भी आप कल्चर कहते हैं वैसे यू हैव टू फॉलो, बट इट इज प्राइमरी एन इंस्टीट्यूशन इन विच इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आर एक्नॉलेज्ड। बट चाहे कोई भी कल्चर हो, चाहे कोई भी ट्रेडिशन हो, चाहे कोई भी कल्चर, ट्रेडिशन, ट्राइब, कुछ भी हो, बट एक चीज कॉमन रहेगी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रहेगा, और चाहे कुछ भी डिफरेंट हो, चाहे आपका वे ऑफ कल्चर डिफरेंट हो, चाहे आपके मतलब वैलिडिटी, चाहे आपकी कुछ भी डिफरेंट हो, लेकिन एक चीज रहेगी, दैट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। उन दोनों कपल्स की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यूनिक, सेफ, प्योर और एकदम एकदम सेपरेट रहेगी, और जो कि हर मैरिज में होगी,
चाहे वो किसी भी कल्चर से गवर्न हो, ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, नेक्स्ट वी आर जंपिंग टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है ना, वो सेक्शन 2 से गवर्नड है। सेक्शन 2 बताता है कि ये हिंदू मैरिज एक्ट लगेगा किस पे। अब जैसे याद करके क्या हुआ, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बंदा था, ठीक है, इसने कहा यार मेरी मैरिज करवा दो यार प्लीज, मेरी मैरिज करवा दो। तो इसका एक फ्रेंड था, उसने कहा अच्छा ठीक है, चल आप भाई मैं करवा देता हूँ। एंड ये उसे ले गया, एंड उसने सेटिंग वेटिंग करवाई, एंड दे गॉट सोलमनाइज्ड इन अ मैरिज, ठीक है। अब विदाउट नोइंग एनी प्रॉन्स एंड प्रॉन्स ऑफ द मैरिज, और मतलब कुछ कुछ भी बात नहीं की, कुछ भी नहीं किया, एंड दे सिंपली जंप्ड इनटू अ यूनियन ऑफ मैरिज, ठीक है। अब लड़ाइयां, क्वेरल्स, डिस्प्यूट्स होने शुरू हो गए, एंड दे वांटेड डाइवोर्स, ठीक है। अब डाइवोर्स में जब कोर्ट के पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई कौन से एक्ट से गवर्न हूँ। अब ये पता चला कि ये असलियत में, अब इसने जैसे जैसे ब्राइड बोल रही थी वैसे वैसे एट द टाइम ऑफ मैरिज इसने कर दिया कि हाँ भाई बस मैरिज होनी चाहिए, मैं कुछ भी कर दूंगा, ठीक है। तो इस वाले केस में पता चला कोर्ट के पास, जब ये कोर्ट के पास गया, कि ये तो मोहम्मदन बन चुका है, तो अब ये तो मुस्लिम एक्ट में गवर्न होगा, ठीक है, मुस्लिम एक्ट में गवर्न होगा। अब क्या हुआ, कोर्ट ने कहा भाई तुम तो मुस्लिम एक्ट से गवर्न हो ना, तुम हिंदू लॉ क्यों ला रहे हो बीच में। तो अब ही सेड अच्छा ओके, तो लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो मैं मुस्लिम एक्ट से गवर्न हूँ। तो उसने कहा भाई तू ओपन कर सेक्शन 2, सेक्शन 2 ऑफ HMA, हिंदू मैरिज एक्ट, एंड यू विल गेट टू नो कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो ये घर गया, एंड उसने सर्च किया, मेरी वीडियो देखी उसने, एंड ही गॉट टू नो कि यार चलो बेयर एक्ट पे चलते हैं, एंड उसने देखा कि सेक्शन 2 तो एप्लीकेशन एप्लीकेशन में बात कर रहा है, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, ठीक है चलो ठीक है। टू एनी पर्सन हु इज अ हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म और डेवलपमेंट इंक्लूडिंग अ वीरशैव लिंग और अ फॉलोअर ऑफ ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज। अब ये जो है ना, ये एक्सट्रीम समाजेस हैं, तो अगर आप जो है इंक्लूड कर रहे हैं इन वाले समाज में, तो यू विल बी कंसिडर्ड एज, मतलब आपका एप्लीकेबल हो गया वाला एक्ट। सेकेंडली, टू एनी पर्सन हु इज अ बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, ठीक है। तो उसने कहा यार चलो मैं तो इसमें भी नहीं आता, मैं इसमें भी नहीं आता, चलो सी वाला क्लॉज पढ़ते हैं। टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू व्हिच दिस एक्ट एक्सटेंड्स हु इज नॉट अ मुस्लिम। ओह शिट, मैं तो मुस्लिम कन्वर्ट हो चुका हूँ, और ये अब रो रहा है। उसने कहा अब तो मैं मुस्लिम कन्वर्ट हो चुका हूँ, इसका मतलब ये वाला एक्ट में लगेगा ही नहीं, अब मुझ पे तो लगेगा मुस्लिम एक्ट, ठीक है। चलो मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल होगा उस पर, ठीक है। तो होल पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस स्टोरी वाज कि आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है एप्लीकेबिलिटी ऑफ वो पे। अब उसका जो लॉयर है उससे पूछो भाई तूने हिंदू लॉ में वो कैसे कर दिया, हिंदू लॉ से आपने केस कर दिया, सेक्शन हिंदू लॉ के कोट कर दिए, पहले ये तो जान लेते कि वो सच में हिंदू लॉ में आ भी रहा है, गवर्न हो भी रहा है या नहीं, ठीक है। लेट अस रीड दिस सेक्शन 2, हमने बात कर ली कि ये ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज, एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन, सिख आल्सो कम्स अंडर दिस एक्ट, ठीक है। thirdly इट अप्लाइज टू एनी पर्सन लिविंग आउटसाइड दिस टेरिटरी। अब ये नहीं कि जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ये हमारा प्यारा इंडिया है और ये बाहर चला गया टेरिटरी के, ठीक है। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे तो हिंदू था और ये बाहर चला गया तो अब ये हिंदू नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, ये हिंदू ही रहेगा, एक्सेप्ट वो मुस्लिम ना हो, क्रिश्चियन ना हो, पारसी ना हो, ठीक है, या ज्यू ना हो बाय रिलीजन, ठीक है। और इट इज प्रूव दैट सच पर्सन इज बीइंग गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ। अब बेर एक्ट ने इतना क्लियर कर दिया कि भाई मुझे पता है इंडियंस बहुत महान है, मैंने इतना एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन अगर कोर्ट को लगेगा कि सच पर्सन इज बीइंग गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ, तो वो हिंदू लॉ भी कर सकती है, ठीक है। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए इन फ्यूचर कि जिसमें कोर्ट को लगे कि ये जो हिंदू लॉ से ही गवर्न होना चाहिए, तो वो हिंदू लॉ से ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हु इज हिंदू। हिंदू कौन है भाई। हमने बात की कि हिंदू हिंदू बाय बर्थ होना चाहिए, एक मिनट जस्ट हमने, ठीक है। सो हमने बात की कि हु इज हिंदू बाय बर्थ, हमने बात की कि चेंज हिज रिलीजन, ठीक है। अब इन दोनों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो हु इज अ हिंदू, हिंदू दो टाइप के हो सकते हैं, हिंदू बाय बर्थ हो सकता है या हिंदू बाय रिलीजन हो सकता है, ठीक है। अब हिंदू बाय बर्थ और हिंदू बाय रिलीजन का क्या मतलब है। हिंदू बाय बर्थ, एक मिनट, हाँ। अब हिंदू बाय बर्थ का क्या मीनिंग है। हिंदू, ठीक है। हिंदू, हिंदू दो टाइप के होते हैं, हिंदू बाय बर्थ
या फिर हिंदू बाय रिलीजन। हिंदू बाय बर्थ का क्या मीनिंग है? हिंदू बाय बर्थ का मीनिंग है सबसे पहला कि हिंदू फादर, हिंदू या तो फादर या मदर हो, ठीक है। सेकेंडली क्या मीनिंग है कि एनी पर्सन बॉर्न इन एनी कम्युनिटी एक्सेप्ट, अब कोई भी पर्सन है बॉर्न जो होना चाहिए हिंदू फैमिली में, बुद्धिस्ट फैमिली में, सिख फैमिली में, ऐसे तो हो जाए, लेकिन एक्सेप्ट मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूज, इन तीनों में नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों में हुआ तो ये वाला हिंदू बाय बर्थ नहीं हुआ, हिंदू बाय बर्थ नहीं हुआ, ठीक है, अगर इन तीनों में से किसी का हुआ। थर्डली हमारा पॉइंट क्या आता है, ब्रॉट अप पेरेंट्स जो होंगे ना, सपोजिटली अडॉप्टेड है, ठीक है, ब्रॉट अप पेरेंट्स हिंदू हो, तो इन तीनों केस में हिंदू बाय बर्थ मान लिया जाएगा। अब लेट अस डिस्कस हिंदू बाय रिलीजन क्या होता है। हिंदू बाय रिलीजन क्या होता है, एक पर्सन है, अब उसे भाई इतना ज्यादा मतलब उसकी जो फॉलोइंग है ना, उसकी जो फॉलोइंग इन गॉड, अब वो चेंज हो गई। अब उन्हें लगता है कि यार मुझे जो है, या तो फिर अब वो फॉलोज अब वो फॉलो, अब उसकी फॉलोइंग चेंज हो गई, अब वो फॉलो करता है समाज, ब्रह्मो समाज हमने पढ़ा था ना, ठीक है, हमने पढ़ा था प्राप्त समाज, हमने पढ़ा था आर्य समाज। तो अब वो फॉलो कर रहा है इन तीनों को अगर, ठीक है, तो नाउ वी कैन से दैट अब ये हिंदू बाय रिलीजन हो गया। नेक्स्ट, अब ये जो बंदा है ये फॉलो कर रहा है बुद्धिस्ट, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, सिख, तो अब इन तीनों केस में भी इसे हिंदू ही ट्रीट किया जाएगा, हिंदू बाय रिलीजन, ठीक है। बट सेम एक्सेप्शंस, मुस्लिम नहीं होना चाहिए, मतलब मुस्लिम को प्रीच कर रहा है वो नहीं होना चाहिए, सिंगली क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए, पारसी, ज्यू, ये सब नहीं होना चाहिए बाय रिलीजन, ठीक है, अंडरस्टूड, डन। अब इसके बाद लेट अस सी, अब इसके बाद लेट अस सी कि मैरिज जो है हमारा फाइनल टॉपिक, कि मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट और सेक्रीमेंटल, कॉन्ट्रैक्ट है सेक्रीमेंटल है, ये पता लगाना है अब हमें, ठीक है। सो लेट अस सी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट के केस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट के केस, जिसमें हम सेक्शन 10 करेंगे। सेक्शन 10 जो ये कहता है, सेक्शन 10 ऑफ, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि हम ये देख रहे हैं ना कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो हम सेक्शन 10 देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसमें वो डिस्कस करते हैं फ्री कंसेंट के बारे में, ठीक है। अब फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट तो छोड़ो, कंसेंट भी नहीं होती है कभी कभार पार्टीज की, अगर कंसेंट भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब जैसे कन्यादान वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, कन्यादान, उसके अंदर फादर के पास एक ऑब्लिगेटरी ड्यूटी होती है कि वो अपनी जो गर्ल है उसकी जो मैरिज है वो एक सूटेबल बॉय से कराए, ठीक है, वी स्टडी दैट कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर जो फादर है अगर फोर्सफुली उस बॉय के साथ उसकी मैरिज करवा देता है, ठीक है, तो दिस मैरिज विल बी कंसिडर्ड वैलिड मैरिज। हाँ, कंसेंट नहीं है तब भी वैलिड मैरिज माना जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। कन्यादान में फादर हैज अ ड्यूटी कि फाइंड अ ग्रूम, और उसके साथ वो यूनियन में, यूनियन कॉल्ड मैरिज में वो उसे सोलेमनाइज करवा दे, ठीक है। अब इट डजंट मैटर कि उसकी जो कंसेंट है वो है या नहीं, उस वाली फीमेल की कंसेंट, उसकी जो गर्ल है उसकी कंसेंट है या नहीं, इट डजंट मैटर, इट विल बी टर्म्ड एज अ वैलिड कंसेंट, इट विल बी टर्म्ड एज अ वैलिड मैरिज, ठीक है, टिल द टाइम, टिल द टाइम अगर वो कोर्ट का सहारा नहीं लेती है, वैलिड मैरिज, ठीक है, इट विल बी टर्म्ड एज वैलिड मैरिज। सेकेंडली, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज इज अ वॉइडेबल मैरिज। What does voidable marriage means? It is valid till the time any party has objection, or in other words, it is valid. It is void. It is void at the option.
ऑफ पार्टी। व्हाट इट मींस कि वैलिड तो है, एक एस्पेक्ट अगर हम देखें तो वैलिड तो है। अगर किसी कोई जो गर्ल है उसकी मैरिज हो गई, ठीक है, अंडर द प्रेशर वो कोर्ट भी नहीं चाहती है, तो ये एक वैलिड मैरिज हो गई। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाए तो क्या सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 से इसकी मेजोरिटी तो रीच होनी चाहिए यार, मेजोरिटी एज, जस्ट अ मिनट, मेजोरिटी एज तो टच होनी चाहिए, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी टर्म्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे मैरिज तो हो गई वैलिड, बताओ। तो इसलिए दीज आर द क्वेश्चंस कि सबसे पहले तो ये चाइल्ड मैरिज वाला, सेकेंडली ये कंसेंट वाला, ये दो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है भाई, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है भाई। अरे हाँ, एक और चीज इसके अंदर ना, ये जो नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर दो केस लॉज और हुए थे, दो केस लॉज जिन्होंने सपोर्ट किया था, वैसे मैंने नोट्स में भी मेंशन कर दिया है, लेकिन लेट मी मेंशन हियर आल्सो। तो इनका जस्ट अ मिनट, ठीक है, इसका नाम था केस ऑफ टिकैट, टिकैट वर्सेस बसंत, ठीक है। एक तो ये केस था, सेकंड केस है शिवो नंद वर्सेस भगवंत ठीक है। तो ये तो केस लॉ थे जिन्होंने सपोर्ट किया कि ये जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आगे देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है बट वाई। अगर तुम फेवर, अगर तुम आर्ग्यूमेंट दे रहे हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो सबसे पहले तुम देख क्यों रहे हो, मतलब किस बेस पे दे रहे हो। तो लेट अस सी। सबसे पहले ये बोलता है कि सेक्शन 12 देखो भाई, सेक्शन 12 ऑफ एचएमए। तो हमने कहा चल ठीक है देख लेते हैं भाई, तू कह रहा है तो सेक्शन 12 देखते हैं भाई। ठीक है, सेक्शन 12, ठीक है भाई। अब सेक्शन 12 पे आ गया। अब सेक्शन 12 में देख, वॉइडेबल मैरिज लिखा है, हाँ भाई लिखा है। वॉइडेबल मैरिज में क्या लिखा हुआ है कि इट कैन बी एनल्ड बाय डिग्री ऑफ नलिटी ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, ठीक है लिखा हुआ है। ऑल्दो ये वॉइडेबल है बट इट कैन बी एनल्ड बाय डिग्री ऑफ नलिटी। हाँ, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं हो सकता। हम्म, जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट को तुम बीच में एंड नहीं कर सकता अगर वो वैलिड है। इफ इट इज वैलिड इट कांट बी एंडेड till the obligation or promises are fulfilled, is fulfilled, ठीक है। लेकिन आप ये कह रहे हो, लेकिन ये जो वैलिड है, ठीक है, अब लेकिन आप ये कह रहे हो कि नलिटी, डिग्री ऑफ नलिटी से हो सकता है ग्राउंड, मतलब आप इसे वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है, वॉइड एंड मे बी एनल्ड बाय डिग्री, तो एनल हो सकता है बाय डिग्री ऑफ नलिटी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये क्वेश्चन में। सेकंड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन इज, जस्ट अ मिनट, सेकंड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन इज, तो सबसे पहले हमने एचएमए देख लिया, ठीक है, ये देख लिया कि वो नलिटी, डिग्री ऑफ नलिटी। सेकंड पॉइंट इट सेज कि दो केस लॉज है वो डिस्कस करेंगे, दो केस लॉज जिन्होंने इस वाले पॉइंट को कि कॉन्ट्रैक्ट है उसे जस्टिफाई किया है, वो कौन कौन सी केस लॉज है। सबसे पहले है भगवती, ये नोट्स में दे रखा है, ठीक है, भगवती सिरन सिंह वर्सेस सिंह, पहला केस लॉ ये। सेकंड केस लॉ अंजुना देवी वर्सेस, अंजुना देवी वर्सेस घोष। अब अंजुना देवी वर्सेस घोष में क्या डिसाइड हुआ कि डिस्पाइट बीइंग इन सेक्रीमेंट एंड इंस्टीट्यूशन इट इज अनडाउटेबली अ कॉन्ट्रैक्ट एज कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ कोरिलेटिव राइट्स एंड ड्यूटीज। अब इसने क्या बोला, जजमेंट में क्या आया कि ठीक है एक सेक्रीमेंट होगा, सब कुछ सही है, लेकिन इट कांट बी निग्लेक्टेड कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी है। और पूछा यार कॉन्ट्रैक्ट क्यों, कंसिडरेशन इसमें क्या बोल रहे हो, तो उसने कहा कंसिडरेशन देखो, कंसिडरेशन इज नॉट, हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी कि वो मॉनेटरी टर्म्स में, कंसिडरेशन हियर इज कोरिलेटिव राइट्स एंड
राइट्स, ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ये कोरिलेटिव में आते हैं, मतलब कंसिडरेशन में उसके साथ आते हैं। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे, कंक्लूजन हमने ये निकाला कि यार मैरिज है, ठीक है, मैरिज इट इज बोथ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अ सेक्रेमेंट। तो हमने मैरिज का ये कंक्लूजन निकाला कि इट इज बोथ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सेक्रेमेंट। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपने ये कॉन्सेप्ट समझा पूरे मैरिज का, एंड यू हैव, एक बार आप नोट से पढ़ के देखना, एंड यू हैव टू लिस्ट आउट कि आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे ये कोरिलेटिव राइट्स है। अब इस पूरे सेंटेंस में कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस को बड़ा करना भी एक आर्ट होती है। तो ये, लेकिन इसका ये कीवर्ड है, ये इसका कीवर्ड है जो कि हमें देखना है। ये वाला कीवर्ड हमारे आंसर में, हमारे अगले पॉइंट में मेंशन होना ही चाहिए। सो यू हैव टू लिस्ट आउट कि कौन से कीवर्ड्स हैं, मुझे कैसे प्रेजेंट करना है अपना आंसर। ठीक है, सो बट हमने मैरिज का ये कंक्लूड निकाला कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी है, सेक्रेमेंट भी है। थर्डली हमने ये पढ़ा था, कि जो मैरिज है वो कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हमने अभी पढ़ा। मैरिज में हमने पढ़ा था कि जो हिंदू लॉ है उसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा था हमने। हमने एप्लीकेबिलिटी पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि जो मैरिज होती है उसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, हमने मैरिज की हिस्ट्री पढ़ी थी। सो वी हैव डिस्कस ऑल द थिंग्स। ठीक है, जस्ट एनालाइज, जस्ट गो थ्रू द नोट्स, और कभी कोई आपको प्रॉब्लम आए तो मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।